Let's check that. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी हैव. So variable is just a name given to memory location address, and using variable we can easily store, access or update the values easily. And then we have seen how to create a variable also. So we need this data type to be specified explicitly. Then we write the name of the variable, then we write the equal to and some value assignment. So based on the variables content, we have two types of variables, that is primitive variable and another one is non-primitive or reference variable. अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रिमिटिव टाइप की है तो उस वेरिएबल को बोला जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल. प्रिमिटिव टाइप मतलब अगर उसमें वैल्यू है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, इन टाइप की अगर वैल्यू है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को बोला जाता है प्रिमिटिव वेरिएबल. प्रिमिटिव में डायरेक्टली वैल्यू होती है. अगर कोई वेरिएबल में इन वैल्यू को छोड़ के दूसरी कई वैल्यू होती है, इन टाइप को छोड़ के दूसरे कोई टाइप का वैल्यू होता है तो उस पर्टिकुलर टाइप को बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस वेरिएबल. यूजुअली रेफरेंस वेरिएबल विल हैव अ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका वो एड्रेस या रेफरेंस. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल. आपके पास क्लास नेम होगा, वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू और क्लास नेम, मतलब यूजुअली राइट हैंड साइड दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट, this will be an object. So this particular thing, in this thing s is a reference variable. So s stores the data of type student, s stores the data of type. Then we talked about types of variables based on the usage. Based on the usage मतलब उसका यूज कैसे करने वाले हैं उसके बेसिस पर आपके पास तीन टाइप के वेरिएबल. So we know the class and object concept. So we need class in order to create the object. The object is nothing but an instance of a class, or it is an memory space allocated for the class type. The object is an memory space allocation. Without object we cannot perform any other operation. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे. जैसे एग्जांपल, आपका बैंक में अकाउंट नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन, राइट. तो अगर आपको नाउ थिंक ऑफ दिस बैंक अकाउंट एग्जांपल itself. So every customer will have a bank account. So everyone will have the bank account number, customer ID, first name, last name. ऐसे 1000 कस्टमर्स होंगे तो 1000 कस्टमर्स के 1000 रोज रहेंगे आपके पास, या 1000 objects will be there. So these kind of data if you want to store, then you go with the instance variable. If the variables which are used to store the data which is object specific, ऐसा डेटा स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज करोगे कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल्स यू विल यूज, इंस्टेंस वेरिएबल. जैसे बैंक नेम, अभी सारे कस्टमर्स के लिए उस बैंक के सबका बैंक नेम कैसा होगा, सेम होगा. So if you want to store such information which is common for all of the objects, if you want to store such information which is common for all of the objects, then you go with the static variable. Static matlab this is not going to change, this will be common. Static means it does not change, this is something common for all of the objects of that particular. So static means this is something will remain static or will remain same for all of the objects. That information will be stored only once. तो अगर ऐसा information आपको store करना है तो कौन से variable का use करोगे, static variable. Now third one is local variable. Local variable आप use करोगे when you want to store some temporary calculation. So this information is not specific to object or it is not common for all of the objects. ये ऐसा information है, ऐसा इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो. जैसे कोई मुझे अभी 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है, या उनका एवरेज एज निकालना है, या उनका एज का सम निकालना है, या उनके मार्क्स का सम निकालना है, इसके लिए आप यूज करते हो लोकल वेरिएबल. So these are three different types of variables. So variables which are used to store object specific information are instance variable. Variables which are used to store uh, the information which is common for all of the objects, it is nothing but static variable. And variables which are used to store some intermediate results or temporary calculation which is not specific to your object, not common for all of the objects. तो ऐसी information के लिए आप use करते हो
लोकल वेरिएबल। अब ये तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं एंड दे आर स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द हीप मेमोरी एरिया, स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द क्लास और मेथड मेमोरी एरिया, लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक मेमोरी एरिया। मतलब दीज आर डिफरेंट मेमोरी एरियाज और तीनों मेमोरी एरियाज में अलग अलग वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है, स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है या लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी आपका वो डेटा स्टोर होगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। स्टैटिक वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्लास क्रिएट होगा, क्लास मेमोरी में लोड होगा। जैसे ही आपका क्लास मेमोरी में लोड होता है तो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलेगा। देन लोकल वेरिएबल कब उनको कब मेमोरी मिलेगा, जब आपका कोई मेथड कॉल होगा तब आपका पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगा। व्हेन इंस्टेंस वेरिएबल्स विल बी डिलीटेड, जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म होगा उस टाइम पे आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स कब डिलीट होंगे, जब वो क्लास मेमोरी से बाहर या अनलोड होगा, दैट टाइम योर स्टैटिक वेरिएबल्स विल बी डिलीटेड। लोकल वेरिएबल जैसे आपका मेथड खत्म होता है उसी टाइम आपका लोकल वेरिएबल्स विल बी डिलीटेड। हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी क्रिएटेड, हाउ मेनी टाइम्स इंस्टेंस वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड, जितने बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उतनी बार आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलता है। स्टैटिक वेरिएबल्स they will be created only once when the class is loaded in the memory. Local variables, every time a method is called your local variables will be created and at the end of method execution or completion your local variables will be deleted. और लास्ट में हमने देखा था व्हाट इज इट, ये होता क्या है, अगर कोड में कोई कहीं पर दिखाई देता है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो instance variables are defined inside the class outside of all methods, all constructor, all blocks without any static key। ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आप उससे पहले स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड लिखते हो तो वो बन जाता है स्टैटिक कीवर्ड। अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास बट outside of the method, outside of the constructor, outside of the blocks। ऐसे और विद स्टैटिक कीवर्ड, तो ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है स्टैटिक वेरिएबल। देन लोकल वेरिएबल्स which are defined inside a method, inside a constructor or inside a block, ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है लोकल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को क्या बोला जाता है, लोकल वेरिएबल। क्लियर है। तो आज हम देखने वाले कि इनको कैसे एक्सेस करें, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सेस। ठीक, so we will be seeing how to store data using instance variable, static variable and local variable। how to store, how to access, ये हमारा आज का अटेंड पूरा एजेंडा है। टॉक अबाउट दिस कि मुझे डेटा कैसे स्टोर कर सकता हूँ मैं, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल या लोकल वेरिएबल का यूज कर, हाउ डू यू स्टोर दैट। अभी तक हमने जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करे थे सारा कोड हमने कहाँ पर लिखा था, मेन मेथड के अंदर। कहाँ पर लिखा था, मेन मेथड के। I have this class and I have a method।
and I write your left. तो आपने यहाँ पर these variables which are defined inside the method, inside the constructor or inside the block are called as local variable. So this is a local variable, this is also local variable. और एक और खास बात, आपने जो args लिखा है, args is also local variable, is also local variable. ये कौन से टाइप का लोकल वेरिएबल है? प्रिमिटिव लोकल वेरिएबल. This is also primitive local variable. Primitive local variable. I write string abc equal to xyz. What is this variable abc? This non-primitive local variable. Non-primitive local variable. ARGS is also non-primitive local variable. It is also non-primitive local variable. It is also non-primitive local. तो we know simplest of all. तो local variable को क्या करना है? You will define the local variables. You will define the local variables inside the method. You will access them or you will modify the value there itself in the method itself. आप पे करोगे आप. तो सबसे पहले हम देख रहे थे लोकल वेरिएबल्स. क्या देख रहे थे? लोकल वेरिएबल्स. व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स? Variables which are defined inside the set or block. Variables which are defined inside the method, constructor or block. So local variables cannot be accessed outside of the method. Example, अभी आप एक और मेथड लिख सकते हो, public void public static void display method. So there is another method. I have another method. तो इस मेथड को मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ display. अभी जो abc आपने लिखा है, so if you try to access this abc here, you will not be able to do that. So because this abc and this abc, so this abc is this particular abc variable cannot be accessible outside of the, आप उसको मेथड के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. You will get compile type error. So local variables cannot be accessed outside of the method. So what we do, we define them inside the method and use it there itself. मतलब जहां पर जिस मेथड में आपने वेरिएबल क्रिएट किया उसी मेथड के अंदर आपको यूज करना है. एग्जाम्पल, आपने ये बाउंड्री है उसका, दिस इज काइंड ऑफ अ बाउंड्री. अगर आपने वेरिएबल इस पर्टिकुलर मेथड में क्रिएट किया तो उसको यूज भी कहां पर करोगे? इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर. वेरिएबल कब क्रिएट होगा? जैसे आपकी मेथड कॉल होगी उसी टाइम आपका ये वेरिएबल कॉल होगा, उसी टाइम उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी और जैसे ही मेथड खत्म होता है आपका वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा. योर वेरिएबल भी आल्सो डिलीटेड. ठीक. नाउ टू एक्सेस local variable we don't need any prefix और suffix. हमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स की जरूरत नहीं है. जैसे वेरिएबल के नाम से पहले कुछ क्लास नेम या कोई भी चीज की जरूरत नहीं. डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो आप. यस. लेफ्ट एंड राइट आपने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, तो आर वी एबल टू एक्सेस दैट? यस. तो आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो. तो सबसे सिंपलेस्ट क्या है आपका? लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर डिफाइन करो और वहीं पर उसे यूज करो. दैट्स इट. देखो 0 and 5 प्रिंट हुआ.
So we are able to create variables, we are able to store the value and we are able to access the value also. मतलब जो भी वैल्यू वहां पर स्टोर थी उसे आप एक्सेस कर पा रहे। सिंपल। लोकल वेरिएबल हाउ डू वी एक्सेस? सबसे अभी तक हम वही लोकल वेरिएबल यूज करते आ रहे हैं। फ्रॉम द डे वन वी हैव बीन यूजिंग लोकल वेरिएबल्स। सिंपल। Now I will write some variables there in दूसरी एक और बात, local variables won't get, this is also one of the questions, local variables won't get any default value। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स गो बैक हियर। अगर आप इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे और उसे आप एक्सेस करने का ट्राई करते हो, आपने कोई वैल्यू इसे असाइन करी क्या? नहीं, दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन। तो उससे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं मिलता है, इट डज नॉट गेट एनी डिफॉल्ट वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर लोकल वेरिएबल को वैल्यू कोई असाइन नहीं है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। सो इट इज सेइंग दैट दिस इज एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, इसको कोई वैल्यू असाइंड नहीं है। लोकल वेरिएबल को कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं होता, उनको एक्सप्लिसिटली वैल्यू असाइन करना पड़ता है। तो मेरे पास अभी दो है वेरिएबल, लेफ्ट एंड राइट। तो इनको एक्सेस करने से पहले, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करने से पहले उसमें कुछ वैल्यू होना जरूरी है। दिस इज कंपल्सरी फॉर द लोकल वेरिएबल्स, दिस इज कंपल्सरी। नाउ व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल? कैन समवन डिफाइन? ठीक है, तो कहाँ पर डिफाइन करते हो आप इसे, वेरिएबल को? स्टैटिक कोड के साथ, मेथड के अंदर या बाहर? तो ये वेरिएबल कहाँ पर लिखते हो आप? सारी मेथड्स के बाहर, सारी कंस्ट्रक्टर के बाहर, सारी ब्लॉक्स के बाहर आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। अगर स्टैटिक कीवर्ड लिखा है तो वो बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल, अगर आपने कुछ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा तो ये बन जाता है इंस्टेंस। तो दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल, ये बन जाता है आपका। ठीक। नाउ अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को वैल्यू एक्सेस करना है, इन दोनों का वैल्यू एक्सेस करना है। तो यू टेल मी, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, which variable will get the memory? Only static और a को? Whether the a variable will get the memory, then this variable will get. So if I try to access a, if I try to access b, so b I am able to access but a I am not able to access. Why? हाँ ठीक है, आप मुझे बताओ b वेरिएबल को मतलब what kind of variable it is? b variable, static variable. So static variable belongs to a particular object or how it is? Static variable कैसा है?
कॉमन है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है उसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे वो, दिस इज समथिंग वन टाइम वैल्यू दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रहे ना रहे फिर भी आपके बी वेरिएबल को वैल्यू मिलेगा बिकॉज दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। एंड what about this? So usually of static variable, this is something common, this is something common for all of the objects of that particular class। तो आप static variable को access करने के लिए आपको चाहिए एक class name, you need class name। what is the class name? we have demo2 class variables dot, तो आप इसे access करते हो, to access static variables we use class name dot static variable name। क्या लिखते हो आप? बाय डिफॉल्ट इसे वैल्यू मिलता है 0, बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू मिलता है यहाँ पर इसे 0। तो स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल विल गेट द डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई डिफॉल्ट मतलब कोई वैल्यू नहीं देते तो उनको डिफॉल्ट वैल्यू मिलता है 0 0। so we are able to print the default value। what about this a? वैल्यू असाइन नहीं है, लेकिन इसको मेमोरी कब मिलेगा, इस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलेगा? ठीक है, मैं इसको वैल्यू कुछ दे देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इंट a इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको 100 दे रहा हूँ, इसको 10 दे रहा हूँ। आप ए भी प्रिंट करने का ट्राई करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, यू विल गेट कंपाइल टाइमर, यू विल गेट कंपाइल टाइमर। नाउ टेल मी व्हाट दिस लाइन डज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन नंबर 4। कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, और आपने वहां पर लिखा है इंट ए इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ? ए को वैल्यू, ए को कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, 10। थिंक लिटिल बिगर। हाँ इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल को कब मेमोरी मिलता है, सिंपल, आपको बैंक अकाउंट नंबर कब मिलेगा, अकाउंट ओपन करने के बाद। तो सिमिलरली आप मुझे बताओ आपका अकाउंट नंबर कब होगा, जब आपका अकाउंट ओपन होगा। अभी आपका अकाउंट ओपन है, वी हैव द ऑब्जेक्ट, तो आपको वेरिएबल को वैल्यू वो एक्सेस होगा, ये तो मेमोरी मिलेगा नहीं। इसको मेमोरी कब मिलेगा, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अभी तो उसको, इज इट कॉमन, नो इट इज नॉट कॉमन, इट इज समथिंग स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस वैल्यू विल बी स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट ए इक्वल टू 10 का मतलब होता है जो भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे सारे ऑब्जेक्ट्स का डिफॉल्ट वैल्यू कितना रहेगा, 10। एग्जाम्पल, कोई भी आपके बैंक में आता है तो सबका अकाउंट आईडी अकाउंट नंबर होगा 10। क्या मतलब हुआ इसका, जो भी कस्टमर्स आएंगे जिनका भी आपके पास अकाउंट ओपन होगा तो वो सारे कस्टमर का बाय डिफॉल्ट अकाउंट नंबर कितना होगा, 10। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 10 इनिशियली। ये चेंज होगा, बट इनिशियली जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इनिशियली आपका अकाउंट नंबर होगा 10। ठीक, नाउ इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट demo2 ये रेफरेंस इक्वल टू न्यू। ठीक, नाउ ये ए क्या है, व्हाट इज दिस, वेरिएबल, बट किसका, अभी आप बोल रहे हो अकाउंट नंबर,
प्रिंट द अकाउंट नंबर, बट हुज अकाउंट नंबर, इसका कोई भी कस्टमर हो सकता है उसका, तो ये रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, रेफरेंस डॉट ए। क्या लिखना पड़ेगा आपको? रेफरेंस डॉट ए। रेफरेंस मतलब ए इज ए वेरिएबल विच इज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफरेंस। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू किसका है? इस पर्टिकुलर रेफरेंस का। तो आप इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हो? टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज रेफरेंस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल, सिंपल। यहाँ पर प्रिंट होगा then यहाँ पर how do we access? Now let's create a bank account and I will have some couple of variables in the customer ID or string customer name, account number, string bank name equal to balance और float भी ले सकते हैं। So you tell me what are these? These are instance variable. What is this? This is a static variable. आप मुझे बताओ, मैं कस्टमर आईडी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ? अभी बैंक नेम तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ मैं, बैंक अकाउंट का बैंक नेम डायरेक्टली आई कैन एक्सेस। तो दिस इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आपको पता है, क्लास नेम डॉट। हाँ, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या यहाँ पर? तो नाउ व्हाट अबाउट दिस कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी देन अकाउंट नंबर, एक्सेस कर पा रहे हो आप? देन कस्टमर नेम, एंड बैलेंस। अब बोल रहे हो कि कस्टमर आईडी, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ना किसका कस्टमर आईडी, हुज कस्टमर आईडी, हुज अकाउंट नंबर, हुज कस्टमर नेम, हुज बैलेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हाउ डू वी क्रिएट द अकाउंट? वी से बैंक अकाउंट गो टू न्यू बैंक, और ये आप बैंक अकाउंट डॉट कस्टमर आईडी, बैंक अकाउंट डॉट कस्टमर नेम, अकाउंट डॉट कस्टमर, बैंक अकाउंट डॉट। अभी सबका वैल्यू कितना रहेगा? बाय डिफॉल्ट कस्टमर, आपने कुछ वैल्यू दिया नहीं उसका, कस्टमर आईडी क्या रहेगा? ये लाइन नंबर 15 पे आपने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। अकाउंट क्रिएट करना मतलब मेमोरी स्पेस क्रिएट करना, एलोकेट करना। तो आप मुझे बताओ, मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ मतलब किससे मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ? बैंक अकाउंट स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल्स थे उनको सबको मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया। एग्जाम्पल कस्टमर आईडी, अकाउंट नेम, तो क्या यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो सबका वैल्यू देखो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और मेमोरी भी एलोकेट हो गया। कस्टमर आईडी इनिशियलाइज विद 0, कस्टमर अकाउंट नंबर आल्सो 0, कस्टमर नेम इज इनिशियलाइज विद नल एंड बैलेंस इज इक्वल टू 0। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू, और आप उसे ही मतलब क्या कर रहे हो? आप उसे ही आप प्रिंट कर रहे हो। दैट्स इट। बैंक नेम 0 0 null, that is how we access, right? Let's talk about this
static variable, how do we access static variables? We access static variables using class name dot static variable name. We access static variables using class name dot instance variables. We access instance variables using reference dot instance. लोकल के लिए तो कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं चाहिए, बस स्टैटिक के लिए क्लास नेम और इंस्टेंस के लिए रेफरेंस, इंस्टेंस के लिए रेफरेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? हाउ डू वी एक्सेस द वेरिएबल्स, हाउ डू वी सेट द वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, जो बैंक अकाउंट क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू चेंज करना है मुझे। आई एम नॉट हैप्पी विद द कस्टमर आईडी 0, अकाउंट नंबर 0, अकाउंट कस्टमर नेम, ये सब सारा नल आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू सेट करना है। सो बैंक अकाउंट डॉट customer ID, I will set it to 101. Bank account dot आपका account number I will set it to 1234, and I want to set name also, customer name also. So we have Sachin, and I want to set the balance also dot balance equal to let's say 1000. आपने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लेकिन कौन सी वैल्यूज मिली, सारी गार्बेज, गार्बेज मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज या डमी वैल्यूज, जीरो नल जीरो नल। तो लेटर आपने क्या कर दिया, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज आपने चेंज कर दी। पहले जो जीरो था उसको 101 कर दिया, वन जो अकाउंट नंबर 1 था उसको भी, जीरो था उसको 1234 कर दिया, कस्टमर ने नल था उसे अपने सचिन एक्चुअल वैल्यूज असाइन कर दी। फिर बैंक अकाउंट क्रिएटेड, वैल्यूज आर चेंज, एंड फाइनली यू आर प्रिंटिंग द वैल्यूज। सिंपल, दिस द आपका स्टैटिक वेरिएबल एंड दीज आर द एक्चुअल। आप यहाँ पर आपको प्रिंट कर दो, आप ये बोल सकते हो कस्टमर आईडी इक्वल टू लाइक दिस। ये क्या प्रिंट हो रहा है आपका, कस्टमर नेम, कस्टमर अकाउंट नंबर, प्लस देखिए आप उसको हाथ में लिख सकते हो, दिस इज योर कस्टमर नेम। Similarly, you will print the customer bank balance. से आपको आसानी होगी। ठीक है, easy. Let's try accessing some values. I'm creating a product class, and I have some variables, product ID, product price, और product। अब मुझे क्या करना है,
मल्टीपल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है. सो प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट. ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया. अब मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू सेट करनी है. क्या करना है, प्रोडक्ट वन डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू 101, प्रोडक्ट डॉट नेम उसका हम लेट से सेट करते हैं लैपटॉप, और उसका प्राइस सेट करते हैं प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू लेट से 1 लाख. बस ये फर्स्ट प्रोडक्ट रेडी हो गया. यहाँ पर डमी वैल्यू सेट हो गई थी, फिर उसको आपने वैल्यू चेंज कर दी. इसके बाद यू विल क्रिएट one more object प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 2 की वैल्यू सेट करते हैं, प्रोडक्ट 3 की वैल्यू सेट करते हैं. प्रोडक्ट 2 की वैल्यूज आई एम सेटिंग टू 102, और यहाँ पर सेट कर रहे हैं हम लेट्स से वाइल से वाइल ऑफ लेट्स से 25. प्रोडक्ट 3 103 पर है लेट्स से वर्क स्टेट this one. So I have 3 products. Now check this program. So these 3 are which variables? Instance variables. Perfect. And what about this method? So whatever the variables you create inside the method are nothing but local variables. अब मुझे बताओ यहाँ पर ये वेरिएबल ये क्या है? What is this line number? Can you tell me this line? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर प्रोडक्ट 1 क्या है? What is product 1? It is a reference variable. It is an which variable? Local reference variable. Similarly, product 1, product 2, what are these? Product 2, product 3 are nothing but local reference variables. What are these? Local reference variables. So it is a reference variable pointing to an object. Product 2 is also a reference variable pointing to an object. Product 3 also is an reference pointing to an object. ये तीनों क्या है? Local variable. Can I say product 1, product 2 and product 3 are local variables? Yes. These are local reference variables. What are these? Local reference variable. और राइट हैंड साइड में क्या है? ऑब्जेक्ट. राइट हैंड साइड भी हाँ ऑब्जेक्ट. ठीक. अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 इनके प्राइस का एवरेज निकालना है. एवरेज प्रोडक्ट प्राइस मुझे निकालना है. तो आप क्या करोगे? तो यू नीड प्रोडक्ट 1 डॉट का प्रोडक्ट प्राइस प्लस प्रोडक्ट 2 डॉट प्रोडक्ट प्राइस प्लस प्रोडक्ट 3 डॉट प्रोडक्ट प्राइस. अब इन तीनों को क्या करना है आपको? सम फाइंड करना है. क्या करना है आपको? सम. क्या हो गया? प्रोडक्ट प्राइस सम. अब मुझे इनका एवरेज निकालना है. एवरेज कैसे निकालोगे आप? प्रोडक्ट प्राइस बाई 3. क्या मिलेगा? एवरेज प्रोडक्ट. अब ये कौन से वेरिएबल्स है? प्रोडक्ट प्राइस सम, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, व्हाट आर दिस? these are local variables. Local variables. Perfect. So product price sum इक्वल टू, आप एज इट इज उसे प्रिंट कर सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस सम. सिमिलरली आप प्रोडक्ट प्राइस एवरेज पर आइए एवरेज कर सकते. परफेक्ट. देखो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स बनाए. क्या है 3 वेरिएबल्स? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस. दीज आर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स. सो व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स.
उसके बाद दूसरे क्लास में एक मैंने मेन मेथड लिखी, सेम क्लास में भी लिख सकते हो बट मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाया की वैल्यूज, पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और सबका डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा 0 नल 0। अब मुझे वो वैल्यूज नहीं चाहिए थी 0 नल 0, तो मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लिसिटली उनकी वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसको मैंने ओवरराइट कर दिया था। सो 0 विल बी रिप्लेस्ड विथ 101, null will be replaced with laptop, 0 will be again replaced with 1, again you created another product, तो एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट वाज अर्लियर वन प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, देन अगेन वन मोर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आपने वैल्यू सेट कर दी। हाँ बोलो। हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना मैंने यहाँ पर। प्रोडक्ट टू का भी किया ना मैंने यहाँ पर, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट थ्री। नहीं 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 नहीं, सेम मतलब देखो अभी, अब मुझे बताओ, अभी लेट से बैंक में 10 लोग गए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो कितने लोगों का अकाउंट होगा, सबका ही होगा राइट, सबका ही रिकॉर्ड स्टोर होगा। क्या करना है, 10 लोगों का आपको डिटेल्स स्टोर करना है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। वैसे मुझे 3 प्रोडक्ट्स का डिटेल्स स्टोर करना है, तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो देयर विल बी 3 रिकॉर्ड्स, तो मुझे 3 बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसे भी इसे भी कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया अभी, 3 प्रोडक्ट्स बनाए, क्या बनाए मैंने, 3 प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स, और सबका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 नल 0। डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगा सबका, 0 नल 0, मेमोरी एलोकेट हो गया, दैट्स इट। बट वहां पर क्या है, डमी वैल्यूज या डिफॉल्ट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट बन गया लेकिन उस पर क्या है, सारी डमी वैल्यूज है, डमी वैल्यूज मतलब 0 नल 0। अब उसको चेंज करने के लिए ये सारा मैंने कोड लिखा है, तो प्रोडक्ट वन का प्रोडक्ट आई चेंज कर दिया मैंने, प्रोडक्ट वन का प्रोडक्ट नेम भी उसका भी चेंज कर दिया, प्रोडक्ट वन का प्रोडक्ट प्राइस चेंज कर दिया। सिमिलरली मैंने प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री का भी प्रिंट कर मतलब चेंज कर दिया कंटेंट। सिंपल, ये समझती है। डायरेक्टली वी आर इन द सेम पैकेज, सेम पैकेज है तो आप कर सकते हो। तो मैं सेम कोड यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट इन द सेम मेथड ऑल्सो, मतलब प्रोडक्ट क्लास में ही सब कुछ मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम यहाँ पर भी लिख दिया, और मेन मेथड मैंने यहीं पर ही डिफाइन कर दिया, ये भी चल जाएगा, दिस ऑल्सो फाइन, तो मैं इसे भी कर सकता हूँ। Yes, any other questions? थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ कर सकते हैं ये भी क्लास, ये वाला ये बोल रहे हो ना, ये वाला क्लास। हाँ कर सकते। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने 3 फील्ड्स डिफाइन करी है, कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, हाउ प्रोडक्ट विल लुक लाइक, तो एवरी प्रोडक्ट विल हैव प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस। तो फिर मैंने एक्चुअल में प्रोडक्ट्स बनाए यूजिंग दिस टेम्पलेट, कि कोई भी प्रोडक्ट दिखेगा तो उसके पास क्या रहेगा, ये 3 फील्ड्स रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया, 3 प्रोडक्ट्स बनाए, और सबके पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, तीनों का सेम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। तो फिर मैंने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस तीनों का चेंज कर दिया। चेंज क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर सबको मिली थी डमी वैल्यूज, यहाँ पर क्या मिली थी, डमी वैल्यूज, तो इसलिए मैंने उसको सेट
मतलब चेंज कर दिया मैंने, आई हैव चेंज द वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट 1 टू सम रियल वैल्यूज, ये यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। तो प्रोडक्ट 1 इज सेट, प्रोडक्ट 2 इज आल्सो सेट, प्रोडक्ट 3 इज आल्सो सेट, एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पर उनका सम निकाला और यहाँ पर एवरेज निकाला, एंड देन आई हैव प्रिंटेड द sum as well as average. Kiran, what was the question? So we were looking into this question, how to store access data using instance variable, static variable and local variable. लोकल वेरिएबल का बहुत सिंपल सा काम है, मेथड के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करो, उसको वैल्यू असाइन करो और उसी को एक्सेस सेम मेथड के अंदर करो, और वहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, देयर यू डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, डायरेक्टली उसका नाम यूज़ करना है और प्रिंट करना है या जो भी यूज़ करना है, तो वहाँ पर कोई आपको प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन स्टैटिक वेरिएबल्स, तो स्टैटिक वेरिएबल्स का भी आपको कोई लेना देना नहीं है, जैसे क्लास लोड होती है वैसे आपके स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, और उसे कैसे एक्सेस करोगे आप, यूजिंग क्लास नेम डॉट आपका जो भी स्टैटिक वेरिएबल है उसे एक्सेस करोगे, सिंपल। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये लग सकता है कि इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस तभी कर पाओगे जब वो ऑब्जेक्ट होगा, तब वी एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा तभी आप उसे एक्सेस कर पाओगे। सिमिलरली जैसे आपका बैंक अकाउंट होगा तभी आप किसी का कस्टमर आईडी जान सकते हो या सेट कर सकते हो, या कस्टमर आईडी आप चेंज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो फर्स्ट वी नीड टू हैव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा फिर उसकी वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज मिलेगी उसे, फिर उसको आप चाहते हो तो चेंज कर सकते हो और फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हो, रीड कर सकते हो। एग्जाम्पल अभी लेट से आपको लेट से कोई बैंक अकाउंट ओपन करने के, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं होगी सारी, तो समटाइम यू विल नॉट हैव योर नॉमिनेशन डिटेल्स कि आपका नॉमिनी कौन होगा, या आपका डिटेल एड्रेस नहीं होगा, कभी कभी होता है कि एड्रेस में कुछ फील्ड्स मिसिंग है, या आपका ईमेल आईडी अभी के अभी नहीं है, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो वहाँ पर डमी वैल्यूज होगी कुछ नल, बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी फिर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ नल, राइट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सारी वैल्यूज पहले तो मतलब फॉर नाउ इट इज ऑल डिफॉल्ट वैल्यूज जीरो नल ऐसी वैल्यूज रहेगी, फिर बाद में आप उसे चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें आप फिल करते जाओगे, यू विल अपडेट दैट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, उनको कैसे एक्सेस करना है, हाउ डू वी स्टोर, हाउ डू वी एक्सेस दैट, क्लियर है? अब मुझे बताओ डेटा को कुछ मतलब है क्या, अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो डेटा कब चेंज होगा, when data will change, when instance variables will change, when local variables will change, when static variables value will change। अगर आपके पास कोई ऑपरेशन नहीं है तो आप उस डेटा का कोई मतलब नहीं है, यू डोंट हैव एनी मीनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा। एग्जाम्पल, आपका बैंक अकाउंट, योर बैलेंस विल नॉट गेट अपडेटेड इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, डिपॉजिट नहीं करोगे, विड्रॉ नहीं करोगे, ट्रांसफर नहीं करोगे, सो दैट डेटा डज नॉट हैव एनी meaning, so you need to have some operations or functions so that you can work on that particular data। डेटा के ऊपर कब काम काम कर पाओगे, जब आपके पास मेथड्स नाम का कुछ टूल है या कुछ ऑपरेशंस है। आप बैंक आप अकाउंट आप लॉग इन करते हो, लॉग इन लॉग आउट, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट फंक्शंस और ऑपरेशंस। लॉग इन करना मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना, फिर यूजर नेम पासवर्ड चेक करना करेक्ट है या नहीं, यूजर नेम पासवर्ड व्हाट इज दिस इज द डेटा, so you are validating the data whether it is equal to whatever the user has entered with the actual data। तो आप जो फंक्शनलिटी कर रहे हो, लॉग इन लॉग आउट, ट्रांसफर, विड्रॉ, चेक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, ये सारी ऑपरेशंस आप कर पाओगे इफ यू हैव डेटा। और डेटा को कब मतलब बनता है, जब आप ऑपरेशन को कुछ ना कुछ परफॉर्म करोगे। डेटा डज नॉट हैव एनी वैल्यू इफ यू आर नॉट हैविंग एनी मेथड, तो मेथड के बिना डेटा अधूरा है। So data is kind of a skeleton. Data is kind of a skeleton, and methods are nothing but operations. Methods are nothing but operations. तो आप ऑपरेशंस के बिना मतलब आप बोल सकते हो जैसे ह्यूमन बॉडी इज काइंड ऑफ स्केलेटन इज नथिंग बट योर वेरिएबल्स।
और operations are nothing but outer everything. तो both are important, yes. ऐसे कुछ है क्या skeleton नहीं होगा तो चलेगा क्या? दोनों भी जरूरी है, राइट? बोथ ऑफ द थिंग्स आर नेसेसरी. ऐसे नहीं कि डेटा है तो मेथड नहीं चाहिए, मेथड है तो डेटा नहीं चाहिए. वी नीड बोथ द थिंग्स. तो methods will be there which will work on the data. Methods will be there too which will work on the data. So we need methods. Without that we cannot do anything. मेथड्स के बिना हम डेटा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते. अभी भी आप मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या वेरिएबल क्रिएट करना, ये काम कहाँ पर कर रहे हो आप? कहाँ पर कर रहे हो आप? वेरिएबल तो क्रिएट किया, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज कब कर पा रहे हो आप, या उसकी वैल्यू कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? तो यू नीड सम मेथड. यू नीड सम मेथड. तो हमने यहाँ पर कोड कहाँ पर लिखा था? मेन मेथड के अंदर. मेन मेथड के अंदर ही कोड लिखा हमने, यस. तो विदाउट मेथड यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी. आपका डेटा को कोई वैल्यू नहीं इफ यू डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड. So methods are there to manipulate the data. So using methods only we will work on the data. और बस डेटा नहीं है, बस मेथड्स है, चलेगा क्या? So both are interrelated. So you will not be able to perform operations if you do not have the data. You will not be able to perform operation if you do not have the data. अगर let's say methods missing है, आपके पास डेटा ही है, तो ऑपरेशन कैसे करोगे? How will you change the data? How will you make sure that you are performing the operation? तो दोनों एक साथ चलने चाहिए. So both of the things we need. We need some data as well as we need methods also. Both the things are very much necessary. We need both the things. Need both the things. ऐसा नहीं कि आपको बस डेटा है या मेथड है, दोनों चीजें हमें चाहिए टू प्रॉपरली फंक्शन. तो मेथड क्या होता है? वी विल सी दैट. जैसे मेथड पता चलेगा देन वी विल एक्सप्लोर वेरिएबल्स आल्सो मोर. So how do we change the values of variables using different methods? Methods कैसे काम करेंगे? How methods will work on the data? So for that we need to understand the concept of method. तो मेथड के बिना आप वेरिएबल्स के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. So we need to understand the concept of method. Then we will understand कि actually कैसे काम हो सकता है मेथड्स का इन डेटा के साथ. We'll try to understand. So what method is? What method is? You will try to understand. This method. Yes, anyone knows what is method? Yes, it is operation on data. तो कोई भी ऑपरेशन इट इज काइंड ऑफ अ टास्क. अभी मेथड को बहुत सारे नाम से. मेथड हैज द नेम एज टास्क. इसे फंक्शन भी बोला जाता है. इसे बिहेवियर भी बोला जाता है. और इसे रूटीन भी बोला जाता है. इसे इम्प्लीमेंटेशन भी बोला जाता है. बहुत सारे नाम से. प्रोसीजर भी बोला जाता है इसे. और भी बहुत सारे नाम. जावा में हम यूज करेंगे मोस्टली. वी विल यूज दिस नेम एज. So method you can think of it is a task, function, behavior, routine, implementation, procedure. All of these are same thing. All of these are same thing. अभी task का मतलब होता है, you know that task. What do you mean by task? To perform a task. Now what can be task? Task can be sending a email, sending a OTP, और मुझे कुछ addition of two numbers करना है, या किसी का square करना है, या मुझे किसी का let's say I have some input and based on that I have to calculate the EMI calculator से यूजर से हम input accept करेंगे कि what is the principal amount, what is the rate of interest, what is the duration. Based on that we will tell you कि this is the EMI, this is the total amount of fee. तो ये सारी छोटी छोटी टास्क है. तो कोई भी टास्क को आपको पता है कि एक we need to have some set of lines. We need to have some set of lines of code, or we need to have some steps. We need to have some steps. And steps will have some beginning and there will be some end. So we write this set of steps inside the curly braces, and simply we know that there will be a name of that particular thing. There will be name of this particular task. So we can write task name. We'll write the task name. And to perform this task, you might have some input also. You might accept some input to perform this task.
So what is optional? Optional is particular thing. This is something if you want. This is not compulsory for all the tasks. ऐसे नहीं कि सारे टास्क को आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा. दिस इज समथिंग फॉर सम इट विल नीड सम इनपुट, सम इट विल नॉट नीड इनपुट आल्सो. जैसे ही इनपुट एक्सेप्ट करेगा वैसे ही आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क इट माइट जनरेट सम आउटपुट आल्सो. Might generate some output. So we have three things: name of the task, input whatever it might ask, and after completing the steps it will return some value. That is also called as type, also type of data. So return type इसे बोला जाता है return. क्या बोला जाता है उसे? return type. So what is method in Java or any other programming language? Is method? Method is nothing but a group of statements which are enclosed, or a group of steps which are enclosed inside the curly braces, which has a name, which might accept input and which might return output. What is method? Method is nothing but a group of statements which are enclosed inside the curly braces, which might have which has name, which might accept input, which might return output also. Right? Now, simple example I will give. Now I am writing a task or a method which will do addition of two numbers. Will do addition of two numbers. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसका नाम add, और ये एक्सेप्ट करने वाला है कुछ डेटा. तो आपको बोलना पड़ेगा कि कौन से टाइप का डेटा एक्सेप्ट है. तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस पर्टिकुलर टास्क एक्सेप्ट्स. आप नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली लेट से नंबर 1 नंबर 2, या नंबर मतलब आप बोल रहे हो ऐसे नहीं लिख सकते कि नंबर 1 है नंबर 2. आपको बोलना पड़ेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ इनपुट यू आर एक्सेप्टिंग. तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेटा टाइप आल्सो. लेट्स से इंट a, int b. So these are nothing but variables. These are nothing but variables. Variables का काम क्या होता है? स्टोर करना. तो कोई भी काम मतलब इफ यू वांट टू कंप्लीट दिस टास्क इट विल एक्सेप्ट द इनपुट. तो इनपुट कहाँ पर स्टोर करेंगे? Where we are going to store that input. So we will store that input inside this particular variables. और इन वेरिएबल को कौन से वेरिएबल्स बोला जाता है? लोकल primitive. I will write the body also. Now after completing this task I will write some steps. I will do their addition and I am going to return some integer value. I am going to return what type of value? Integer. So I am going to return some integer value. So what I am going to do? I am going to do the addition. Addition will be a plus b, और इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है यूजर को. क्या करना है? यूजर को रिटर्न करना है. तो इसलिए मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखता हूँ रिटर्न. का मतलब होता है जो भी इन दोनों का एडिशन होगा वो रिटर्न हो जाएगा जो भी इसे कॉल करेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज मेथड डेफिनेशन. क्या बोला जाता है इसे? मेथड डेफिनेशन. अभी जो मैंने लिखा है इसे बोला जाता है मेथड डेफिनेशन. दिस इज योर मेथड नेम, एंड दिस इज रिटर्न टाइप. क्या बोला जाता है इसे? रिटर्न. और एक खास बात आपको याद रखना है जो मैंने अभी हाईलाइट किया येलो में, राइट? ये पूरा चीज इसे बोला जाता है सिग्नेचर. क्या बोला जाता है? सिग्नेचर. मेथड सिग्नेचर. क्या बोला जाता है इसे? मेथड सिग्नेचर. और जो ओवरऑल प्रोसेस मैंने यहाँ पर जो भी चीज लिखा है उसे बोला जाता है मेथड डेफिनेशन. क्या होता है ये? मेथड डेफिनेशन. नाउ थिंक ऑफ दिस वे. नाउ लेट्स से यू वांट टू प्रिपेयर अ मैगी. यू वांट टू प्रिपेयर अ मैगी. तो उसके लिए जो भी रेसिपी यहाँ पर आपने लिख दी, क्या कर दिया आपने? लिख दी आपने. तो अपने आप मैगी बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा फिर? क्या करना पड़ेगा आपको? आपने ऐसे कुछ स्टेप्स लिखे कि जस्ट प्रिपेयर अ मसाला मैगी. आपने पेपर पे लिखी हो. कहाँ पर लिखी है आपने? अपने पेपर पे डिफाइन करके रखी है. तो अपने आप मैगी बन जाती है क्या? क्या करना पड़ता है? You have to start action. You have to start executing the plan. That was just a plan.
आपने क्या लिखा था, जो भी लिखा था वो क्या था, बस प्लान था, दैट वाज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो लिखे हैं बस। अभी आपको क्या करना है, उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है आपको, स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक एक स्टेप उठा के आपको उसको स्टार्ट करना है काम। तो आप काम स्टार्ट करना मतलब क्या किया आपने, स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द स्टेप्स, स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द स्टेप्स। तो आपने जो मेथड डिफाइन करना है इज काइंड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग अ प्लान, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने पेपर पे लिख दी। पेपर पे कुछ होता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करना पड़ेगा या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि कंप्लीट दिस टास्क, आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, यू विल गेट द आउटपुट आल्सो, राइट। अब मुझे इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पर लिखते हो, लेट्स से आई विल से ऐड, और यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करो 10 एंड 20, ये आपने लिखा। ये जो लिखा है इसे बोला जाता है मेथड कॉल। क्या बोला जाता है इसे, मेथड कॉल। मेथड कॉल मतलब इसका मतलब होता है डू दिस टास्क, आप लिखते हो और यू डू, यू राइट दिस लाइन, इसका मतलब होता है वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस आर देयर इनसाइड दिस, कंप्लीट दैट। इसका मतलब क्या होता है, whatever the instructions are there inside this particular method, control will come to this particular method and all the instructions inside that will be executed. तो मेथड को कॉल किए बिना आप मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी कोड लिखा है, what are the steps you have written, that steps will not complete or that steps will not execute if you do not call the method, if you do not take some action, मतलब उसको कॉल करना। if you do not take any action these statements will not execute। तो वहां पर आपको दो चीज याद रखना है, मेथड डेफिनेशन एंड मेथड कॉल। मेथड डेफिनेशन मतलब इंस्ट्रक्शन बस लिख के रखे आपने, वो अपने आप एग्जीक्यूट होंगे क्या, नो, सो यू हैव टू टेक सम एक्शन। एक्शन मतलब उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हाउ डू वी स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, आपको लिखना पड़ता है मेथड का नाम, ब्रैकेट, और अगर कोई इनपुट दे रहे हो तो वो वैल्यूज एज इट इज पास कर दो 10 एंड 20 एंड बाद में लिखो आप, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ। But what is a method? Method is nothing but a set of instructions which are written inside the curly braces and which has name, which might accept some input and which might return some also। और इस प्रोसेस को जो हमने लिखा है उसे बोला जाता है मेथड डेफिनेशन। ये इंट को बोला जाता है रिटर्न टाइप, मेथड नेम और ऑप्शनल इनपुट पैरामीटर्स, और जो हाईलाइटेड पार्ट है मेथड नेम और ये पैरामीटर्स, इनको बोला जाता है मेथड सिग्नेचर। और जो इंटायर थिंग जो मैंने यहाँ पर लिखी है इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है मेथड डेफिनेशन। तो मेथड डिफाइन करना मतलब पेपर पे रेसिपी लिखने जैसा, इट विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, यू हैव टू कॉल द, right, so instructions inside the method will not be executed automatically, for that we have to call that। तो आपके जावा प्रोग्राम में सब कम से कम कितने मेथड्स होना चाहिए, टास्क कम से कम एक टास्क आप लिखते हो, कौन सा टास्क लिखते हो आप, मेन मेथड। आपने आपके प्रोग्राम में अब तक हर एक प्रोग्राम में आप देखो, हर एक प्रोग्राम में एक टास्क मिनिमम लिखा है आपने, कौन सा टास्क है वो, मेन मेथड। मेन मेथड क्यों लिखा आपने, कोई भी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ तो मतलब वाई डू वी डू प्रोग्रामिंग, टू कंप्लीट सम टास्क, तो कम से कम आपके एप्लीकेशन में एक तो टास्क होना चाहिए, तो दैट मिनिमम वन टास्क इज मेन। तो मेन टास्क का काम होता है, मेन टास्क आपने डिफाइन किया, आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो, वट एवर यू आर राइटिंग इज नथिंग बट अ डेफिनेशन। आप क्लास लिखा उसके अंदर मेथड लिख, तो आपने क्या किया, वो मेथड डिफाइन किया, आपने क्या किया, मेथड डिफाइन किया। और उस मेथड डेफिनेशन को कॉल कौन करेगा, मेन मेथड ही आपने डिफाइन किया ना, तो उसको कंप्लीट कौन करेगा, तो दैट मेथड हैज टू बी कॉल्ड। वो आपने क्या करी, बस रेसिपी लिखी हो, आपने क्या करी, रेसिपी लिखी है, तो उसको कंप्लीट कैसे होगा, वो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तो उसे कौन कॉल करता है, कॉल कौन करता है उसे, मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जेआरई, जेआरई कॉल करता है, राइट। तो आप पहले जावा प्रोग्राम कंपाइल करते हो, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखते थे आप, कंपाइलेशन के बाद कौन सी लाइन लिखते थे, जावा और
एग्जीक्यूशन के लिए क्या लिखते थे आप? पहले थे जावा सी और हेलो डॉट जावा, उससे कंपाइल होता था। उसके बाद जावा और उसके बाद क्या लिखते थे आप? क्लास नेम। क्लास नेम मतलब इस क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसे कंप्लीट करो। क्या लाइन था वो? जावा और क्लास नेम। तो वो लाइन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसे कॉल करो। क्या था वो लाइन का मतलब? उस लाइन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसे कॉल करो। तो कॉल कौन कर रहा है? जेआरई। तो जेआरई इज गोइंग टू कॉल दैट पर्टिकुलर main method. So main method is kind of a start point for your application. Start point for your application. And main method is called automatically when you start the program execution. तो सबसे पहले कौन सी मेथड कॉल होती है? मेन मेथड। फिर मेन मेथड में आप लॉजिक लिख सकते हो कि इनमें से कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मेन मेथड में से आप फिर लिखते हो कि इसमें से कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए। दैट यू समझ में आ रहा है? अभी अगर आप मेथड से पहले कोई स्टैटिक कीवर्ड लगाते हो तो मेथड बन जाता है स्टैटिक। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड, स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक। अगर मेथड से पहले स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया तो बन जाएगा स्टैटिक मेथड। अगर स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो वो बन जाता है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो थिंक दिस विल रिमेन अगेन। We know what is method. Why do we need method? Why do we need method? What is the method? Just let's try to define that. What is a method? Set of instructions complete a task which are enclosed inside the curly braces, which will have a name, which might accept some input, which might generate some output also. Why do we need methods? To complete some task or to represent some task, right? And how do we create a method? What is the syntax? सबसे पहले उसका नाम, some input parameters, then output bracket और यहाँ पर आपके instruction. This is how we create the method. So this is just a method definition. ये क्या हुआ आपका? Method definition. Definition. So based on that we have four types of methods. Based on that we have four types of methods. कौन कौन से methods हैं? Four types of methods we have. अभी तो मैंने दो ही बोला था कि चार टाइप कौन से हो गए. So we have output के basis. So there might be some methods. There might be some methods there might be some methods which will accept the input and which will provide the output also. Example, अभी हमने एक method लिखा था addition of two numbers which accepts two numbers and returns their sum. Now there might be some methods which will not accept any input, which will not provide any output also. मतलब कुछ print करना है मुझे या कुछ भी mail send करना है तो मुझे कोई उस पे expected return output value नहीं चाहिए. तो इस केस में मेथड का टाइप होता है मेथड which does not accept any input, which does not provide any out. एक्सेप्ट भी नहीं करता और रिटर्न भी नहीं करता. There might be some methods which will accept the input but will not provide the output. There might be some methods which will accept the input but will not return any value. तो इसके अलावा कोई दूसरा टाइप नहीं है. These are the different types of methods. Example, int add और यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो आप int a और रिटर्न कर सकते हो आप a प्लस और void display. ये मेथड डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग. मेथड अगर कोई रिटर्न नहीं करता वैल्यू तो void लिखना पड़ता है. void मीन्स दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग and this method does not accept any. Similarly, this method accepts the input but does not return anything. So you will accept something for printing purpose. I will accept a number int x and I will print that. Nothing but the another method.
and lastly I have it which will provide some output, let's say string, and you will say get, और accept तो कुछ नहीं करेगा but return करेगा output. So these are the different types of methods we have. We'll be taking all the examples, सारी methods define करेंगे. We'll try to define the methods. ये तो आपने क्या किया अभी, आपने क्या किया, ये मेथड इस लाइन में जो मैंने किया, ये क्या किया मैंने सारा, मेथड डेफिनेशन, क्या किया मैंने, मेथड डेफिनेशन. और इन मेथड्स को कैसे कॉल करूं मैं, हाउ डू आई कॉल द मेथड्स, हाउ डू आई कॉल दिस मेथड. आपको लिखना है मेथड नेम और दो वेरिएबल्स पास करना है 10 20. इसको कैसे कॉल करोगे, डायरेक्टली डिस्प्ले, प्रिंट मेथड को प्रिंट और वैल्यू पास करोगे 10. गेट, डायरेक्टली विल कॉल दी गेट. दिस इज हाउ वी कॉल दी, तो इसे बोला जाता है मेथड कॉल, इसे बोला जाता है मेथड डेफिनेशन. सिंपल. तो कल हम इन डिटेल मेथड चैप्टर में वी विल ट्राई टू डिफाइन दिस मेथड, डिफाइन करना, उसे कॉल करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. तो आपके पास दो टाइप के मेथड्स है बेस्ड ऑन देयर यूसेज. पहला इंस्टेंस मेथड और दूसरा स्टैटिक मेथड. अगर मेथड के पहले स्टैटिक कीवर्ड होता है तो उस मेथड को बोलोगे स्टैटिक, और मेथड के पहले कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो उसे बोलोगे नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस. दो ही टाइप है. अभी दोनों में कौन सा डिफरेंस है, कब मेथड स्टैटिक बनाना है, कब मेथड इंस्टेंस बनाना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट क्लास. व्हाट इज व्हेन टू यूज इंस्टेंस मेथड, व्हेन टू यूज स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड का क्या यूज है, कब यूज करना चाहिए, स्टैटिक मेथड कब यूज करना चाहिए, हाउ डू वी एक्सेस दैट, उसको कॉल कैसे करना है, उसको डिफाइन कैसे. डिफाइन तो आपको पता है, स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया तो बन गया स्टैटिक, और स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा तो बन जाता है वो नॉन स्टैटिक. सो डेफिनेशन पार्ट यू नो, बट उससे कॉल कैसे करना है, वुड वी कॉल दैट, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड.